आपसे हम सारे टाइटल्स ले लें और बनारस से पंजाब में आके, But I like teaching. सर एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हजारों फील्ड है, ये पैशन है. Hi everyone, welcome back to another episode of The Career Compass. I'm your host Shilpa Miglani Narang, founder and CEO of ITDC and She Connect. एंड हर पॉडकास्ट में हम एक ऐसे प्रोफेशनल से मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने करियर को एज अ करियर नहीं लिया होता, बट उन्होंने अपने करियर को एक पैशन के साथ लिया होता है और उसके साथ एक पर्पस अटैच्ड होता है. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, he is none other than but a person who has impacted thousands of lives, not just for the students but for the teachers also. So let us put our hands together in welcoming Dr. D.K. Bharti, who is ex-scientist CIFID and currently he is the director at Panesia Bharti Institute. Sir, welcome to Career Compass. Thank you, Silpa. Sir, before we begin the podcast, I would want to know कि अगर आपसे हम सारे टाइटल्स ले लें ऑफ डॉक्टर, ऑफ साइंटिस्ट, जो आप एक्स साइंटिस्ट रहे हैं, तो हु एक्चुअली दिनेश भारती इज? I am a career mentor. I want to serve people more and more, and I can benefit from my knowledge. I can help from my knowledge that they should rightly plan their career and become successful in whatever they wish to do in life. सर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई ऑफ अ साइंटिस्ट और अब आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? तो पहले मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन से आपने कैसे चूज करा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? I studied in Banaras Hindu University. I graduated in agriculture and did PhD from Banaras Hindu University in agriculture economics. And from after completing my PhD, I directly came to PAU and joined central government ICR as a scientist. Before that, I was preparing for civil services, and as plan B, I became scientist. ओके. एंड सर, बनारस से पंजाब में आके और वो भी लुधियाना में आके, तो आपको कैसा लगा? क्या क्या चैलेंजेस आए जब आप बिल्कुल नए आए थे यहाँ पे? अभी तो आपको बहुत साल हो गए. कितने साल हो गए सर लुधियाना आए आपको? Almost 30 years. Almost 3 decades, that of my knowledge, very nearby of my age. And आपको क्या challenges initially face करने पड़े जब आपका एक cultural shift हुआ from Banaras to Ludhiana? I enjoyed here. I like my hobby was to visit different places, new places. I traveled throughout the country and enjoyed, learned so many things, different culture, different food. I like it. So when I accidentally came to Punjab, it was just accidental. But this was my first posting, first and last posting. आपने उसके बाद change ही नहीं किया? हाँ. Then I worked 15 years as scientist in ICR. PAU के? Yes. Okay. तो यू नो, साइंटिस्ट होना बहुत बड़ी बात है. लोगों का सपना होता है कि हम कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बने. तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे खुद का कुछ करना है? कैसे एक बड़ी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, अच्छे स्केल पे आप डॉक्टर थे, PhD करके आप डॉक्टर बने. तो मैंने जैसे बताया, बहुत लोग ड्रीम करते होंगे कि हमें ऐसी लाइफ मिले. व्हाट मोटिवेटेड यू कि आपने ये डेयर करा कि मैं एक जॉब छोड़ के अब कुछ अपना करना चाहता हूँ? इनिशियली ये सारी चीज़ें प्लान नहीं थी, बट आई लाइक टीचिंग. I like my transfer of my knowledge and to benefit students. So I started from PAU students. I used to visit them, hostels, and guide them कि आप जब ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत करो. आप साथ साथ अपने करियर को, अपने गोल को एक अगर जो भी बनना चाहते हो, वो एकेडमिक के साथ परस्यू कर लो. तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. तो फिर अंदर से ही मोटिवेशन थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है? यस. अच्छा जी. तो वहाँ से आपने शुरू करा? यस, एंड इट इंस्पायर्ड मी and I started this institute, Panesia Bharti Institute, and served. I produced more than many thousands of successful students in different government jobs and so many test entrance admission tests. तो कौन से साल में सर आपने शुरू करा था अपना ये
एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा I एक्चुअली? started in 2005. 2005, basically. so close to 20 years completed, yes, और yes. ये 21st year चल रहा है आपका. Then I took leave from my job, Okay, leave without pay, okay. and then it flourished like anything. वेरी नाइस. सो सर, एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आई वांट टू नो फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दीज पॉडकास्ट ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन हम रखते हैं, जिसमें एक्चुअल में जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब में है बहुत देर से और एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, जस्ट वन डिसीजन, तो उनको जरूर पता होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने में. ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर. अगर आप नए नए चैलेंजेस को एंजॉय करते हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा सेक नहीं करता, एंड यू ट्राई टू सॉल्व देम, तो फिर देन यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जब रोड में ट्रैवल करते हो, बस से ट्रैवल करते हो, तो दो तरह के बस होते हैं. एक बस वो होते हैं जहाँ थोड़े से अगर पत्थर आ जाए तो आप सेक कर जाते हो पूरी, और एक बस वो होता है कि हाँ उसमें सॉकर लगे होते हैं, बहुत बढ़िया वाला. और आप जितने भी गड्ढे होंगे आप उसको झूमते हुए लहराते हुए वो बस चलती है. तो जो लोग होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो वर्किंग लोग होते हैं, तो वो भी दो तरह के होते हैं. एक होती है छोटी सी प्रॉब्लम में वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. बिल्कुल, ये बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं सर आके, आपको नहीं पता मैम मेरे साथ क्या हुआ, तो मुझे लगता है नहीं भाई बताओ क्या हुआ. और दूसरा पर्सन वो होता है जो हर एक प्रॉब्लम को एक चैलेंज लेता है, एक सिचुएशन लेता है कि नाउ दिस सिचुएशन हैज कम एंड यू हैव टू सॉल्व इट, एंड यू एंजॉय सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम. तो एंटरप्रेन्योर वही बनते हैं, बिजनेसमैन वही बनते हैं, हाँ, जो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं, और एक पैशन होता है काम करने का. आप एज ए जॉब आप 8 आवर्स जॉब करते हो, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर आप एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स जॉब करते हो, मोर एंड देन यू दैट एंजॉय. इवन, क्योंकि अगर आप You सो भी never जाते हो get tired. तो आपको यही लगता रहता है कि कल क्या करना है, कैसे करना है. बिल्कुल, तो आई थिंक वो आवर्स तो जो लोग हाँ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अगर उनमें ये पैशन है, अगर उनको लगता है कि यस आपके इंटरेस्ट का काम है, और उसको आप 10 घंटे नहीं 12 घंटे 16 घंटे काम करके भी अगर नहीं थकते हो, तो आप डेफिनेट सक्सेसफुल होगे अपने वेंचर में. सो सच अ लवली आंसर. सर, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? हम उनकी भी बात करना चाहते हैं. क्या आपको लगा था कि ये तो बड़ा ही मुश्किल हो गया? मतलब कोई ऐसी लाइफ में सिचुएशन, क्योंकि मैं आपके 30 सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सारे बारी अप डाउन आते होंगे, बट कोई ऐसी चीज जिसने एक्चुअल में आपको अंदर से झंझोड़ दिया हो कि अब तो बड़ा मुश्किल है, तो वो क्या था? देखो, वो तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो तो दो बातें होती है, या तो आप सक्सेसफुल होते हो या आप उसमें फेल हो जाते हो. तो जब सक्सेसफुल होते हो तो वो आपकी ग्रोथ है, जो फेल हो गए जिस प्रोजेक्ट में, वो आपकी एक्सपीरियंस है. तो हाँ, दोनों से आप बेनिफिट होते हो. आप कभी भी सेटबैक को ये नहीं समझते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. आप जो भी आपके सेटबैक फेल्योर है, उनमें आपने क्या गलती की और क्या कर सकते थे, अगर ये लर्निंग आपके एटीट्यूड में है तो अगले एफर्ट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. मैं फिर भी सर जानना चाहूंगी, आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया था जब आप शुरुआती दिनों में थे अपने? मेरे पास चैलेंजेस तो ऐसे कुछ भी नहीं थे. अच्छा. मैं एक क्लास 1 जॉब में था, हाँ, वहाँ से सैलरी मिलती थी. मैं अपने पार्ट टाइम में मॉर्निंग इवनिंग पहले टीचिंग एंजॉय करने लगा. हाँ, जब मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे एंजॉय देता है, मुझे सेटिस्फेक्शन देती है और लोगों को इसका बेनिफिट होता है, हाँ, तो टू वे हैप्पी सिचुएशन होते हैं कि विन विन सिचुएशन में आप भी खुश होते हो सर्व करके, और जिसके लिए सर्व कर रहे हो वो भी खुश होता है क्योंकि वो उसको सक्सेस मिल रहा है. बिल्कुल. आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में आप मोटिवेटेड होते हो. बिल्कुल सर. और जब मोटिवेट हो गया तो मुझे लगा क्यों ना इसको हम फुल टाइम करें. तो मैंने जॉब से लीव लेकर इसको 10 hours 12 hours आई वर्कड, आई डिड हार्ड वर्क एंड आई हेल्प पीपल, और हजारों लोगों के वो मैंने सक्सेस दिलाया. और मुझे लगता है कि लुधियाना का कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ मेरे बच्चे नहीं है. सो आई फील प्राउड
and very happy. सर आपकी जर्नी से ना एक बड़ा ही मुझे भी बात सुनते सुनते ये देखने को मिला कि आपने रिस्क भी लिया और एक कैलकुलेटेड रिस्क था आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे पहले आपने जॉब से, जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने लीव विदाउट पे करी, ट्राई करके देखा, फिर अच्छा लगा। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, तो क्या पहले एक एक्सपीरियंस जॉब में लेना ज़रूरी है उनके लिए, या एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप में कूद जाएं? बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ, मैं भी बहुत स्कूल्स कॉलेजेस में जाती हूँ, तो बड़े छोटे छोटे बच्चे फ्रॉम ग्रेड 8 अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, और बड़ा ही देख के मुझे अच्छा भी लगता है और लगता कुछ मतलब थोड़ा सा एक मन घबराता भी है कि इतनी जल्दी ये स्टेप। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ एक्सपीरियंस हो पहले से? ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं होता, इट Okay. वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके। अगर कोई बच्चा बहुत इनोवेटिव है, वो चाहता है, उसका ड्रीम है कि मैं कुछ अलग से करूं, तो आजकल स्कूल से ही लोग स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। वही बात कर रही हाँ, थी। तो ऐसा नहीं है। और जब आप जॉब में होते हो, जॉब में आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एक्सपीरियंस होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, या आपकी पोटेंशियल के अनुसार जो जॉब नहीं है, यू डोंट एंजॉय वर्किंग, तो मुझे लगता है कि उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ओके। और ये एक मोटिवेशन होता है, हाँ, जो कि आप अपने, हाँ, इसके फायदे हैं, एंटरप्रेन्योर के फायदे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, एक तो आपको है कि फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। एब्सोल्युटली। हाँ, कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप आपकी बॉसलेस अपने- होते हो। You are आपकी the boss। जो भी इनोवेशंस है, जो भी थिंकिंग है, जो भी प्लानिंग है, उसको एक एग्जीक्यूट करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। दूसरा है कि आपको एक ग्रोथ, हाँ, यू एंजॉय ग्रोथ, हाँ, डेवलपमेंट। आपको जॉब में क्या चाहिए? आप रिस्पेक्ट चाहते हो और रिवार्ड चाहते हो। रोटी कपड़ा मकान इज द नीड बेसिकली। अगर आपको अपने काम में रिस्पेक्ट और रिवार्ड दोनों मिल रहा है, इट विल बी मोर सेटिस्फाइंग देन व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो पहले तो ये है कि आप अपने खुद के बॉस होते हो। सेकंड, आपको और रिस्पेक्ट और डिग्निटी फील होती है एक जॉब में आके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बिजनेस में आप जो भी करते हो, हाँ, उसका क्रेडिट आपको मिलता है। फिर आप जो भी बिल्टअप करते हो अपने रेपुटेशन कंपनी का, हाँ, अपने ग्रोथ, वो आप इनहेरिट कर सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशन को। एब्सोल्युटली। जॉब में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो वेरी नाइस सर। सर आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर, जो भी बच्चा, एक प्रोफेशनल जो भी हमें देख रहा है, कल को सोचता है कि मुझे खुद का कुछ करना है और एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए क्या रिक्विजिट स्किल सेट है? अगर आप कुछ मुझे 5 या 6 स्किल्स, जितनी भी आपको लगती हैं, ठीक है, आप बता पाएँ, तो बंदा एक अपने आप को सेल्फ चेक कर ले कि क्या ये मेरे पे है, और अगर नहीं है तो वो डेवलप भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या है वो स्किल सेट? देखिए, आज के ज़माने में अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक फील्ड नहीं है, 2 फील्ड नहीं है, हजारों फील्ड है। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, और आपका उसमें इंटरेस्ट प्लस स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैं अगर टीचर बना, तो मैंने PhD की, मैंने सिविल सर्विसेज UPSC की तैयारी की और नॉलेज एक्वायर किया। तो जब वो नॉलेज, हाँ, साइंटिस्ट में वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो हमने सोचा कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करता हूँ, और वो, हाँ, बच्चों को अगर बेनिफिट उससे मिला तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। दैट्स वेरी वेरी नाइस। सो कुछ ऐसे भी रिक्विजिट स्किल्स नहीं है, बट आपके पास एक पैशन होना चाहिए अंदर से कि आपका जो भी आप करना चाहते हैं वो अगर आपको नहीं फुलफिल हो पा रहा, एंड यू शुड, आई थिंक, टेक द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी राइट प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप खुद स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो आपको अर्ली स्टेज में आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि राइट एजुकेशन मिले, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू बिकम। ओके। तो अगर आप सही टाइम पर प्लानिंग कर लेते हो तो आपका टाइम भी सेव होता है, आप फोकस्ड होते हो, और कम से कम टाइम में आप सक्सेसफुल होते हो। तो करियर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर प्लानिंग के पहले आप एजुकेशन की प्लानिंग करो, कि ताकि आप जो सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, उसी लाइन में अगर एजुकेशन हो, अगर आप सिविल सर्विसेज, हाँ, करना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, और आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें टेक्निकली आपके टाइम्स और एफर्ट्स लग रहा है और काफ़ी डिफरेंट है,
तो फिर वो टाइम आपका निकलेगा उस डिग्री में। हाँ, अदरवाइज आप सिंपल ग्रेजुएट भी बन के आप बड़े बड़े जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो 3 हायरकी होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक सारी अपॉर्चुनिटी है। 50 टाइप्स के जॉब्स होते हैं। आप सारे तरह के जॉब्स में आप प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक आपको सक्सेस मिल सकता है। वेरी नाइस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशन चूज करें। बिकॉज अगर आपकी एजुकेशन और आपका प्रोफेशन दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो आप सच में आउट ग्रो कर सकते हो एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। सर, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, आके कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है ना, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी पढ़ाई करी होती है, बिकॉज आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, एक आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि एक हम क्वेश्चन ज़रूर पूछें। बच्चों के पास डिग्री होती है बट वो क्वालिटी नहीं होती, वो स्किल सेट नहीं होता आजकल के टाइम पे भी। तो अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपने कॉलेजेस के करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐसा डालना है जिससे ये चीज़ें चेंज हो पाए, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, जिससे उनका माइंड और क्लियर हो पाए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? आई थिंक सभी ग्रेजुएट्स को एक तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, एक कंपलसरी, और मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में हाउ लॉजिकली यू थिंक, हाउ लॉजिकल यू आर, हाउ कैन यू टेक डिसीजंस। तो ये सारी चीजें तो आपको हर एक प्रोफेशन में आपको आगे चलकर सीखना ही होता है, या इम्प्लीमेंट कर वर्क में ही आपको इसके इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो हमें लगता है कि जब सारे एडमिशन टेस्ट या सारे जॉब्स के लिए ये 2 चीज़ें होती है सब्जेक्ट के अलावे, कि एप्टीट्यूड भी आपको जानना चाहिए, मेंटल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, तो ये तो पार्ट होना ही चाहिए एकेडमिक का। ओके, चाहे कोई भी डिग्री हो, है ना। अब सर, आजकल एआई आ गया है हर जगह पे, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में कैसे बिजनेसेस को और कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा? बिल्कुल, एआई हर एक फील्ड के लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ, कई लोग अभी से सोच रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर में मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, कि विल एआई टेक देयर जॉब्स। तो ऐसी बात नहीं है। जो नॉलेज और एक्सपीरियंस पर्सन है या स्किल सेट है, वो तो हर जगह रिक्वायर्ड है। बट ये है कि आपको आसानी हो जाती है एआई से। जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर आप एआई यूज करते हो तो आपको सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत आसानी से मिल जाता। आप जो पहले हम एक टीचर्स को ढूंढते थे कि हमारे डाउट्स है, किसी टीचर से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पर एआई आपको 1 मिनट में आपके आंसर दे जाता। इसी तरह इंडस्ट्री में, इसी तरह हर एक फील्ड में एआई आपको एक एफिशिएंट हैंड के रूप में सपोर्ट करता है। राइट सर। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, जो भी बच्चे नया अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू जंप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और इसका फ्लेवर टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दे शुड वर्क ऑन समथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल फील्ड ओनली आजकल के टाइम पे, या जो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल वेज है, वो भी चलेंगे? दोनों चीज़ें हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा इंजॉय करते हो, तो आप टेक्निकल बनो, उसमें भी लोगों को ज़रूरत है, उसमें भी आप कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप के थ्रू। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे जो कन्वेंशनल बिजनेस है, अगर उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो और आप एंजॉय करते हो, तो आई थिंक दैट इज ओके। टाइप ऑफ बिजनेस मैटर नहीं करता, बस आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका इंटरेस्ट, यू शुड एंजॉय, एंड आपका आइडिया कितना पावरफुल है। आई थिंक दैट इज। सर, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते होंगे, मैं वो आपके जुबानी सुनना चाहूंगी। आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप। पहले टाइम पे यही कहा जाता था कि हम बिजनेस करते हैं, तो क्या डिफरेंस है? आई थिंक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, बट वो क्या डिफरेंस है एक एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में? देखो, बिजनेस तो एक ब्रॉडर टर्म है। बिजनेस तो जितने भी लोग किसी भी तरह से आप सोचो कि आप मदर्स की केयर को छोड़कर जितने भी सर्विसेज हैं वो बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप जो है, उसमें आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई ट्रेडिशनल जो आपकी फैमिली बिजनेस है या जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसके अलावा आप कोई न्यू प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, किसको मैं कैसे सॉल्व करूं, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से
आप कई सारे इनोवेशंस करते हो, उसमें कई सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसमें से जब सक्सेस मिलता है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो और अपने एम्पायर को ग्रो करते हो और लोगों को बेनिफिट करते हो। मुझे लगता है इसमें आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल आंसर। जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत ही क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, और जो एक एंटरप्रेन्योर है वो ज़रूर एक नए आइडिया पे काम करके लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। सर, अगर कोई एक स्टूडेंट है, बिकॉज आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो एक स्टूडेंट है, मार्क्स लो हैं, कॉन्फिडेंस भी लो है, और लाइफ में उम्मीद भी छोड़ चुका है कि मैं क्या बनेगा, और बहुत ही चिंता में है, उस बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो स्टेज होते हैं, देखो हर हर सक्सेसफुल इंसान भी कई बार लो फील करता है, ऐसे स्टेजेज आते हैं, ऐसा टाइम आता है जब उसको लगता है कि यार मैंने जो काम किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस समय लो फील होता है। लेकिन हाँ, अगर फिर से ट्राई किया जाए, फिर से उसको आप अपने स्किल को इम्प्रूव करके हार्ड वर्क करो, तो डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। और ये पेशेंस तो चाहिए ही, परसिवरेंस भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और एफर्ट्स चाहिए। नए स्किल्स सीखो, आप अपने पिछले जो एक्सपीरियंसेस से को करेक्ट करो, इम्प्रूव करो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बेसिकली अगर आपको ऐसा लो फील कर रहे हो, तो सर के अकॉर्डिंग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल, तो वो कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगी। ऑल द व्यूअर्स जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या स्टूडेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं आज, तो उनकी तरफ अगर एक मैसेज देना होगा एक प्रोफेशनल से विद सच एन एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि सक्सेस, इफ़ यू वांट सक्सेस, इफ़ यू चेज सक्सेस, तो उस फील्ड में, इस रास्ते में आपको फेलियर तो आएंगे ही। आप फेलियर से सीखो और उसको इम्प्रूव करो, सक्सेस विल कम टू यू वन डे। थैंक यू सो मच सर। एंड जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेरेंट एंड यू आर सक्सेसफुली मैनेजिंग, हम विमेन से तो हमेशा हम बात करते हैं पर्सनल प्रोफेशनल से कैसे आप मैनेज कर रहे हो, बट एज अ मैन ऑल्सो आई थिंक आप सब पेरेंट्स को एक मैसेज दें कि आप कैसे अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करते हैं, और क्या एक टिप है जो बाकी पेरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं आपको देखकर? देखो, एज ए पेरेंट्स, मैं तो पेरेंट्स से यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को, हाँ, बहुत प्यार दो, उन पर ध्यान रखो, उनको इनकरेज करो, सपोर्ट करो, हाँ, एनॉयड मत हो। हाँ, क्योंकि वही आपका जो बच्चा है ना, वही आपकी दुनिया है, वही आपका डायमंड है, और जितना आप उसको सपोर्ट करोगे उतना वो अच्छा बनेगा। Thank you so much, sir, for coming to our podcast. थैंक We really enjoyed the conversation. यू।